Hello students, how are you? I hope you all are good. And you know that we have completed exercise 4.1 till question number 23 in our last video. So today we will study question number 24 and some extra questions related to this chapter. So let's start. So our question number 24 is 2n plus 7 is less than n plus 3 whole square by using PMI. We have to use the PMI to prove this statement. So firstly we have to let this statement as Pn. So we have to let Pn such that 2n plus 7 is less than n plus 3 whole square. And we have to prove this statement by using principle of mathematical induction. So by using PMI, that is principle of mathematical induction, firstly we have to check it for n equals to 1, and on the place of n we have to put the value of n, that is 1. So we will get P1 such that 2 into 1 plus 7 is less than 1 plus 3 square. So here we will get P1 such that 2 plus 7 is less than 4 square. So it will be P1 such that 7 and 2, 9 is less than 4 square, 16. And you know that 9 is already less than 16. So this statement is true. So which is true. Therefore it Pn is true for n equals to 1. Now we have to let it for n equals to k. We have to check it for n equals to k and let Pn is true for n equals to k, and if it is true for n equals to k, so we will get Pk such that 2k plus 7 is less than k plus 3 whole square, and let assume that this is equation number 1. So now we have to check this statement for n equals to k plus 1, and on the place of n we have to put the value of n, that is k plus 1. So we will get Pk plus 1 such that 2 into, on the place of n we have to write k plus 1 plus 7 is less than, on the place of n we have to write k plus 1 plus 3 इसका होल स्क्वायर. तो ये मिलेगा हमें Pk plus 1 such that 2k plus 2 plus 7 is less than k plus 4 का whole square. We have to prove this statement. So here we have to take left hand side, which is 2k plus 2 plus 7. If we rearrange these numbers, so we will get 2k plus 7 plus 2. Can we write it like this? हमने 7 पर लिख दिया और 2 बाद में लिख दिया. अब अगर आप ध्यान से देखो तो 2k plus 7 इसकी वैल्यू है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में. क्या है? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इसकी वैल्यू क्या है? लेस देन, इट इज लेस देन k प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2. अब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 2 अलग से चल रहा है हमारा. ठीक है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. लेस देन k स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 2 जा 6k प्लस 2. सो इट विल बी k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11. हमें इसे प्रूव करना है कि ये k प्लस 4 से स्मॉलर है. अच्छा, एक और चीज चेक कर लेते हैं. देखो, अगर ये k प्लस 4 से स्मॉलर है, हमें पता है कि k प्लस 4 का होल स्क्वायर क्या होगा. ध्यान दीजिएगा, ये होगा a स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 b स्क्वायर हो गया प्लस 2 इंटू ए इंटू बी 2 इंटू k इंटू 4 2 4 जा 8k. तो आ गया k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16. भाई देखो, k स्क्वायर तो सेम है, 6k ऑलरेडी 8k से छोटा है और 11 भी 16 से छोटा है, यानी कि ये जो है इस पूरे से तो छोटा ही है ना. देयरफॉर इट इज विच इज लेस देन k प्लस 4 का होल स्क्वायर. ब्रैकेट में आप ये भी लिख सकते हैं. ठीक है, देयरफॉर इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1 एंड गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू बाई
यूजिंग PMI। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमारा 4n-1 इज डिविजिबल बाय 3 फॉर ईच नेचुरल नंबर n। हमें ये प्रूव करना है कि 4n-1 क्या है, डिविजिबल है 3 से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लेट दिस स्टेटमेंट एज Pn। सो वी हैव टू लेट इट एज Pn सच दैट 4n-1 is divisible by 3 by PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। हम क्या चेक करेंगे, 4n = 1, n = 1 के लिए जहां n दे रखा है वहां 1 रख देंगे, तो ये आ जाएगा P1 सच दैट 4n यानी कि 4 - 1। सो P1 सच दैट 3 इज डिविजिबल बाय 3। सो हम क्या लिख देंगे यहां पर, विच इज डिविजिबल बाय 3, देयरफॉर इट इज ट्रू for n = 1. Now we have to check it for n = k, and always for n = k we assume that this is true. So let Pn is true for n = k. If it is true for n = k, so it will be Pk such that 4k - 1 is divisible by 3. If it is divisible by 3, so it must be equal to multiple of 3. So therefore 4k - 1 is equals to 3q। भाई अगर ये 3 से डिविजिबल है तो ये 3q के इक्वल होगा, है ना। तो अगर मैं 4 की पावर k की वैल्यू निकालू यहां से, तो ये आ जाएगी 3q, ये माइनस का 1 इधर जाके प्लस का 1, विच इज आर इक्वेशन नंबर 1। नाउ 4n = k + 1, n = k + 1 के लिए on the place of n we have to put the value of n, that is k + 1. so we will get Pk + 1 such that 4k + 1 - 1 is divisible by 3. so we have to prove this statement. so now we have, हमारे पास क्या है, हमारे पास है 4k + 1 - 1, so it will be 4k into 4। हमने पावर को ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 से 4 की पावर k की वैल्यू हमारे पास ये रखी हुई है, रख दो भाई। तो ये आ जाएगा हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 की पावर k की वैल्यू है 3q + 1 इंटू ये वाला 4 - 1। तो अब हमारे पास क्या आ गया भाई, 4 के अंदर मल्टीप्लाई, 4 3 = 12q प्लस 4 1 जा 4 - 1 चल ही रहा है, इसको सॉल्व कर दो। सॉल्व करोगे तो 12q तो ऐसे ही रहेगा, 4 - 1 होता है 3, इन दोनों में से 3 आ रहा है कॉमन, जब 3 कॉमन आ गया तो ये आ गया 4q + 1। देखो इसके पूरे के मल्टीप्लाई में 3 आ रहा है, अगर इसको 3 से डिवाइड करो तो 3 कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये बचेगा, मतलब ये पूरा 3 से कैंसिल हो रहा है। सो विच इज डिविजिबल बाय 3, देयरफॉर इट इज ट्रू फॉर n = k + 1, hence given statement is true for n true by PMI, hence ये क्या हो गया आपका, प्रूव्ड। ठीक है, तो हमने एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर ली, मतलब चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर लिया है, और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है। कुछ प्रैक्टिस के लिए आपके क्वेश्चंस मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको आप सॉल्व करके देखिएगा, क्योंकि आपको मैंने कंसेप्ट समझा दिया है पूरा। आप इनको करेंगे तो आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर आपसे कोई क्वेश्चन ना हो इनमें से तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आई विल श्योरली अपलोड अ वीडियो ऑन इट, अगर आप कमेंट करेंगे तो ही, ठीक है ना। तो इसी के साथ पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और बने रहिए अपने बजाज सर के साथ। थैंक यू वेरी मच।